Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So let's move towards our next lecture, lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया, हमने इंटरनेट को डिफाइन किया और हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास किस तरह डिफरेंट जो एंड नोड हैं या हम जिनको एज डिवाइसेस या एंड सिस्टम्स भी कहते हैं वो हमारे पास इंटरनेट के साथ हम किस तरह उनको कनेक्ट करते हैं एंड देयर आर many other connected devices that could be connected with the internet, right? So today the outline of today class is what is a protocol, and then we will look at the internet structure and finally access networks. Okay, so what's a protocol? Okay. जैसे ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड देयर आर सम रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें सो व्हाट्स द टाइम, आई हैव अ क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, एंड देयर आर मेनी मोर सच स्टेटमेंट्स, राइट? एंड रूल्स फॉर protocols are some rules for specific message sent, specific action taken when message received or other events. So let's suppose जब हमारे पास जो है वो ह्यूमन प्रोटोकॉल के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन से पूछता है व्हाट्स टाइम, तो अब हमने एक मैसेज सेंड किया है, इस पे रिसीवर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर हम ह्यूमन प्रोटोकॉल की एनोलॉजी की बात करते हैं, इन द सेम वे जब हमारे पास ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो कुछ मैसेजेस सेंड करती हैं और उन मैसेजेस को रिसीव करके रिसीवर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे हमने ह्यूमन प्रोटोकॉल की बात की। सुनो, लेट्स डिस्कस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर कंप्यूटर और इट could be a devices like laptop, your mobile device, or any other device rather than humans, and all communication activity in the internet governed by protocol mean जो भी मैसेज सेंड किए जाएंगे, जो मैसेज रिसीव होंगे, जो हार्डवेयर को हम एक्सेस कर रहे होते हैं या हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं उन सब में कुछ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं to monitor or to govern the all communication activity in internet. So briefly we can say protocol defines the format, order of message sent and received among network entity. यहाँ पे network entity means ये है कि जो devices या computers आपस में उस communication में participate कर रही हैं, and the action taken on message transmission or receptions. तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर देते हैं, उनके फॉर्मेट को, ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंड रिसीव और उसमें एक्शंस क्या लेने हैं जब हमें कोई मैसेज रिसीव होगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जब कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से ये एक मैसेज सेंड करेगा और जब दूसरा जो पार्टिसिपेंट है या ह्यूमन है वो रिसीव करेगा तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट? हम आगे भी इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन प्रोटोकॉल और कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह function perform करते हैं। So a human protocol and a computer network protocol. So let's say here's a one person, okay, he said hi and then the other person also reply hi and then got the time, then he tells her time. So here, so this is the timeline, right? And these are the messages exchanged between these two person, right? So we could say, okay, this is a protocol of communication. So in the same way, when one device want to get some data from the server, so first this device sends some request. So this is similar to this message, like it's send some request and it's make a connection, that is a TCP connection request. At the moment, don't worry about this terminology. As I said, as we will move forward, you will learn about these terms.
and then the server reply, TCP connection response, then this device request the web page, and then finally file is transmitted to this node. आप यहाँ पे एक web page पे access कर रहे हैं, so before getting this web page you need to make a connection between these two communicating party. So there are many other human protocols as well. So यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जा रहा है वो ये है कि हमारे पास ओवर द इंटरनेट डिवाइसेस जो आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करती हैं, जो कम्युनिकेशंस कर रही होती हैं, उनमें कुछ प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हैं, और प्रोटोकॉल जो हैं वो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, वो मैसेज के फॉर्मेट को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो हम उन पे फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ तक हमने ब्रीफली जो है वो प्रोटोकॉल को डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास अ क्लोजर लुक एट इंटरनेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो अभी फिगर हमें नज़र आ रही है, हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हमने यहाँ पे बात की है कि वी हैव एंड डिवाइसेस हैं हमारे पास, और ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसको हमने मोबाइल नेटवर्क के साथ लेबल किया है। वी हैव अ नेशनल और ग्लोबल ISP है, वी हैव लोकल और रीजनल ISP है, कंटेंट प्रोवाइडर नेटवर्क्स है जो कि डाटा सेंटर्स हैं हमारे पास, इंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं हमारे पास, और होम नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका क्लोजर लुक देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे ऑपरेट हो रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास इंटरनेट जो स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो हम इसको थोड़ा सा फर्दर हम इस फिगर को एलैबोरेट करते हैं, और अभी देखें इस फिगर में जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जिनको सर्कल किया गया है, हमने पहले भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सो ऑल दीज डिवाइसेस आर नोन एज नेटवर्क एजेस, जो कि एंड डिवाइसेस हैं, एजेस डिवाइसेस हैं, जिनको हम एग्जैक्टली एंड नोड्स भी कह सकते हैं। सो दीज इंक्लूड्स क्लाइंट्स हैं हमारे पास और सर्वर्स हैं। क्लाइंट हम उस मशीन को कहते हैं जो किसी सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा होता है। सो लेट्स से दिस मोबाइल है हमारे पास, एंड दीज ऑल कंप्यूटर्स आर दी क्लाइंट नोड। और यहाँ पे जो हमारे पास हैं ये बेसिकली सर्वर मशीन्स हैं, जिन पे ये डाटा भी पॉसिबल स्टोर हो सकता है, आपके वेब पेजेस इन सर्वर्स पे स्टोर होते हैं, या हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो इन सर्वर्स पे एग्जीक्यूट कर रही है। सो हमारे पास होस्ट आर द क्लाइंट एंड सर्वर्स, जैसे अभी हमने यहाँ पे उनको पॉइंट आउट किए हैं। एंड देन सर्वर्स ऑफन इन डाटा सेंटर्स, मोस्टली जो ये सर्वर्स हैं हमारे पास ये डाटा सेंटर्स के अंदर इनको इंस्टॉल किया होता है, और वहाँ पे ये डिफरेंट सर्विसेज हैं प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम लेटर ऑन अभी कुछ लेक्चर्स के बाद जो है वो जब हम मॉडल्स की बात करेंगे तो उसमें हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे ये दोबारा डिबेट होगी कि व्हाट इज़ अ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ अ सर्वर। लेकिन यहाँ पे बेसिक थीम ये है कि हम इस इंटरनेट जो हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, उसके हम यहाँ पे जो एज कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क एजेस हैं, उनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस नेटवर्क्स एंड फिजिकल मीडिया। I told you in previous lecture there are two type of communication links. One is a wired and the other one is the wireless communication links. यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जो कि वाइड हैं, लाइक here we have a wide एक्सेस नेटवर्क्स, यहाँ पे भी हमारे पास वायर्ड लिंक्स है, यहाँ पे भी वायर लिंक है, वायर्ड लिंक है, वायर लिंक है हमारे पास, एंड वी हैव अ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स एज वेल। ठीक है जी। और एक्सेस नेटवर्क्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये एंड नोड है, ये हमारे पास जब किसी भी नेटवर्क का पार्ट बनेगा, सो आइदर ये जो हमारे पास नेटवर्क एज है ये वाइड और वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक को यूज़ करेगा। इट्स सिमिलर जैसे आप घर में हैं और घर में आप जो है वो वायरलेस अपने मोबाइल को एक वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू जो है, जो आपके पास एक्सेस पॉइंट होता है घर में, उससे आप कनेक्ट कर रहे होते हो। फिर हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट हमने बात की थी वो नेटवर्क कोर है हमारे पास, जिनमें ये राउटर्स हैं मेन, जो कि नेशनल एंड ग्लोबल ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास। तो नेटवर्क कोर में क्या है,
इंटरकनेक्टेड राउटर्स हैं एंड नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे पास, जो कि एग्जैक्टली नेटवर्क की कोर कंपोनेंट्स हैं। सो हम अगर यहाँ पे दोबारा इसको समराइज करें तो इट मीन कि इंटरनेट स्ट्रक्चर में वी हैव नेटवर्क एजेस, एंड दीज नेटवर्क एजेस आर होस्ट और सर्वर्स हैं हमारे पास, एंड दीज नेटवर्क एजेस आर connected to the core network via some access networks, and the access networks could be a wired or the wireless communication link. And then we have a network core where we have hundreds or thousands of interconnected routers, right? So this is a closer look at internet structure यहाँ पे. Okay, so the next question is how to connect end system to the edge router. एज राउटर हम कहते हैं जो हमारे पास ये फर्स्ट राउटर है, जैसे घर में आपके पास जो राउटर लगा हुआ है वो एज राउटर है हमारे पास, राइट? सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ mechanism through which we can connect end system to the edge router. So residential access networks हैं हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क्स हैं जो कि स्कूल्स, कंपनी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, या मोबाइल एक्सेस नेटवर्क्स हैं। आप अपने मोबाइल में समटाइम आप जो है वो मोबाइल एक्सेस नेटवर्क्स जो हैं जिनमें वाईफाई 4G या 5G है उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट का पार्ट बन रहे होते हैं। आप घर में आपके पास रेजिडेंशियल एक्सेस नेटवर्क्स हैं, और आप जब कैंपस में आते हैं वहाँ भी अब अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूशनल एक्सेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम ब्रीफली इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस नेटवर्क्स और फिजिकल मीडिया की बात करेंगे कि हमारे पास जो है ये उनकी फर्दर डिटेल क्या है। तो एक्सेस नेटवर्क्स में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है, हमने केबल बेस्ड एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं। यहाँ पे जो एक फिगर दिखाई हुई है, ठीक है, उसमें देखें ये हमारे पास जो है वो होम नेटवर्क्स है, जिसमें यहाँ पे ये केबल मॉडेम पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक जो कनेक्शन आ रहा है उसको आप स्प्लिट कर रहे होते हैं, आप अपनी किसी जो है वो डिवाइस को भी कनेक्ट कर रहे हैं और आप अपने कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? एंड देन दिस केबल गोज एंड देयर आर मल्टीपल अदर सिमिलर जो है वो हमारे पास कनेक्शंस होते हैं। डिफरेंट लोग जो है वो इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फाइबर का हमारे पास नेटवर्क्स हैं, जो केबल बेस्ड नेटवर्क्स हैं हमारे पास, उसमें भी ऐसा ही है कि हम जो है वो आपके घर में केबल आ रही है फाइबर की, ठीक है, ये मेन केबल है, वो उस पर मल्टीपल यूज़र्स का डाटा साइमल्टेनियसली जा रहा होता है, और यहाँ से फिर डिफरेंट जो है वो घरों को कनेक्शंस दिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे केबल हेड एंड है, जहाँ से फिर फर्दर ये केबल जो है किसी एक और मेन केबल के साथ उसको कनेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम किया हुआ है कि ये जो केबल है जो कि मल्टीपल होम्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एट द मोमेंट यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दीज चैनल्स, हम उसको लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास। तो यहाँ पे जो टीवी का आपके पास नेटवर्क्स है, यहाँ पे पास फाइबर का नेटवर्क्स हैं, वो एग्जैक्टली हमारे पास केबल बेस्ड एक्सेस नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या एफडीएम एक टेक्निक होती है, जिसमें हम एक यूज़र के डाटा को दूसरे यूज़र के डाटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ जब आप डिफरेंट चैनल्स आप स्विच करते हो तो बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई एक स्पेसिफिक चैनल है, वो किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, और आपको वो डिस्प्ले कर रहा है। एंड द सेम गोज़ फॉर द अदर चैनल। यहाँ पे वो उसी चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि वी हैव अ मल्टीपल चैनल्स हैं हमारे पास। ये वीडियो चैनल 1 है, ये वीडियो चैनल 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन। तो हम जो है वो अब ये किसी एक स्पेसिफिक चैनल पे उसकी एक फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस क्या होती है कि हमारे पास सिग्नल कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा होता है इन 1 सेकेंड। तो उसको यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को, कि आप यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि हमारे पास जो मल्टीपल यूज़र्स हैं उनका डाटा जब किसी एक मीडिया पे ट्रैवल करेगा तो हमें एक यूज़र के डाटा को दूसरे यूज़र के डाटा से हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। सो नेक्स्ट भी हम केबल जो बेस एक्सेस नेटवर्क्स हैं उसमें थोड़ा सा ये शेयर्ड केबल है, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं ओवर द शेयर केबल।
अब यहाँ पे ये जो फिर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम है, इसको हम CMTS कहते हैं, ये किसी ISP या किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है। ऑब्वियसली बात है, जब हम भी घर में कोई कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो वो PTCL आगे हमें सर्विसेज दे रहा है, उससे कनेक्टेड है। एंड देन वी हैव अनदर हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल है हमारे पास, कि यहाँ पे एसिमेट्रिक टर्म जो यूज़ की हुई है। एसिमेट्रिक का मतलब है कि देखिए हम जो है दो तरह की कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं, एक होती है अपस्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम। लेट्स से जब आप किसी फाइल को अपलोड कर रहे हो, ठीक है, आप ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट कर रहे हैं, या आप यूट्यूब पे अपनी किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपस्ट्रीम जो है वो डाटा होता है हमारे पास। और जो हमारे पास घर के अंदर एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं वो एसिमेट्रिक्स होते हैं। इट मीन्स कि उनका डाउन स्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट और उनका अप स्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम डाटा को डाउनलोड कर रहे हैं। बट इफ़ यू नीड टू हायर अपस्ट्रीम ट्रांसमिशन रेट, आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो HFC हम कहते हैं हाइब्रिड फाइबर टू एक्सेल। एक्सेल केबल, यहाँ पे देखें ये जो केबल दिखाई जा रही है वो एक्सेल केबल है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो हम टीवी की केबल होती है, ये हमारे पास इसमें एक सेंटर में केबल है, उसके ऊपर आपके पास जो है वो प्लास्टिक शील्ड है, उसके ऊपर हमारे पास एक दोबारा से जो है वो मैश होता है, और उसके बाद आउटर जैकेट्स होती हैं हमारे पास इस केबल में। तो ये जो हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल्स हैं, इट मीन के जो बैकएंड पे हमारे पास केबल का जो है वो स्ट्रक्चर होगा वो हाइब्रिड फाइबर होगा, सॉरी, और जो डोमेस्टिक लेवल पे आगे ट्रांसमिट की जाती है वो हमारे पास जो है वो बेसिक कोएक्सियल केबल होती है, राइट, क्योंकि हमें बैकएंड पे हायर डाटा रेट को सपोर्ट करना है। और जो हमारे पास फाइबर केबल है, फाइबर जो मीडियम है, क्योंकि उसमें सिग्नल एज अ लाइट ट्रेवल कर रहा होता है और हमें हायर डाटा रेट जो है वो प्रोवाइड करता है यहाँ पे। सो इस मेट्रिक हैं अप टू 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इसमें हमारे पास जो है 1.2 गीगाबिट्स पर सेकेंड डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, डाउनलोड जो डाटा आप कर रहे हो, और 30 टू 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो है वो अपस्ट्रीम है। तो ये जो गीगाबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, दीज आर दी ट्रांसमिशन रेट है हमारे पास। इट मीन के हम अगर हम कहते हैं कि हमारा जो मीडियम है उसका डाटा रेट 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, इट मीन 1 इंटू 10⁻6 बिट्स हम एक सेकेंड के अंदर वो जो मीडियम है वो ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है हमारे पास। सो network of cable fiber attach home to the ISP routers, and then homes share access networks to the cable head end। यहाँ पे जो हमने ये हेड एंड की बात की है प्रीवियसली, हमारे पास जो है वो बैक एंड पे फाइबर का नेटवर्क होता है। ओके, DSL एक टर्म आपने यकीनन सुनी होगी, जिसका है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस हैं, हम उनको यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसमिट हम कर रहे होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए स्प्लिटर है, घर में आप स्प्लिटर यूज़ करते हो, जो कि आप टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो दोनों आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है, ये सेंट्रल ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कोई PTCL का जो है वो ऑफिस है, जहाँ पे वो आपकी कनेक्टेड है, वो आपका कनेक्शन जो है, राइट। एंड देन देयर आर सम अदर जो है वो कनेक्शंस भी होते हैं हमारे पास। यहाँ पे DSLAM है, DSL एक्सेस मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर्स कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल, क्योंकि ये देखें एक ये होम नेटवर्क शो किया हुआ है, यहाँ पे एक और होम नेटवर्क्स हैं, एंड देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ सच नेटवर्क्स होंगे, जिनकी एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो इनकमिंग यहाँ पे केबल्स आ रही हैं, और उनको फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं टू दी अदर टेलीफोन नेटवर्क्स। और यहाँ पे वॉइस भी ट्रांसमिट की जाती है और डाटा भी ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब टेलीफोन के साथ आप यूज़ करते हो, तो जैसे अब मैं फाइबर आपके घरों में है या आप DSL यूज़ कर रहे हो, तो ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि हम टेलीफोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, और हम जो है वो अपने कंप्यूटर से डाटा भी साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं हमारे पास। सो इन DSL एक्सेस नेटवर्क्स
we are using existing telephone line to the central office, that is the DSLAM or DSL access subscriber. Data over DSL phone line goes to the internet. यहाँ पे अल्टीमेटली जो DSLAM है वहाँ पे हमारे पास हमने डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज ली हुई हैं और वो डाटा इंटरनेट पे आके उसको फॉरवर्ड किया जाता है एंड देन at the same time voice over DSLAN goes to the telephone network because we have two networks, the telephone networks and the internet, right? Okay. And as I explained in previous slide, the data rate of downstream or the upstream could be different. So here, in the case of DSL, data rate could vary from 24 to 52 megabits per second. That is dedicated downstream transmission rate. Mean it's not a shared link; it's a dedicated. Then you could have this much of data rate for your downstream transmission and बिकॉज क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको इंडिकेट किया है कि हम जो है वो डाउन स्ट्रीम जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें डाउन स्ट्रीम हाई डाटा रेट रिक्वायर्ड होता है और अप स्ट्रीम जो है वो हमारे पास 3.5 से 16 मेगाबिट्स पर सेकंड तक सपोर्टेड है इन केस ऑफ DSL. बट इट डिपेंड कि हमारे पास जो है वो अगर कॉपर का बैकएंड नेटवर्क्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डाटा रेट लो होगा, अगर फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो डाटा रेट हमारे पास हायर होगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर जूम किया है जो हमने यहाँ पे इस होम नेटवर्क्स को इंडिकेट किया हुआ है. तो यहाँ हमें विद इन अ होम नेटवर्क्स जो है वो हमारे पास देखें फर्दर डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मोबाइल डिवाइस है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है एंड देयर कुड बी मैनी अदर मोर डिवाइसेस, आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है, ये सारी डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट वायरलेस और वाइड ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड हैं और देन ये राउटर जो है वो फिर आगे किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है. सो दिस वे हमारे पास जो है वो आपका होम नेटवर्क जो है वो becomes the part of internet and two are from head end or central office. यहाँ पे हमारे पास ये केबल और DSL मॉडेम है जो कि हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं जब आप इस चीज़ को जो है वो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं. आप अपने घर में DSL मॉडेम भी जो है वो आप उसको भी एग्जैक्टली ओके. देन वी हैव अ राउटर जिसमें फायरवॉल्स या नेट है. ये फायरवॉल्स क्या हैं, नेट क्या है, एट द मोमेंट इसमें हम डिबेट नहीं कर रहे, लेटर ऑन हम इसके बारे में भी बात करेंगे, राइट. देन हमारे पास यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है ये ईथरनेट वायर के साथ जो है इस राउटर के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे हम वाईफाई वायरलेस एक्सेस पॉइंट है जो कि 54 टू अप टू 450 मेगाबिट्स पर सेकंड तक हमें सपोर्ट करता है डाटा रेट, उसके साथ हम इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड, राइट. और ये हमारे पास जो है बेसिकली ये जो सारी फंक्शनैलिटी है यहाँ पे उसको थोड़ा सा सेपरेट जो है वो इंडिकेट किया हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली ऑफन कंबाइन इनटू अ सिंगल बॉक्स. यानी राउटिंग है हमारे पास, जो मॉडेम है और ये जो हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ये एक ही डिवाइस होती है जिनमें ये सारे फंक्शंस को कंबाइन किया जाता है इन अ सिंगल बॉक्स. Then we have a wireless and wired devices. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स. ये जो प्रीवियसली हमने देखा यहाँ पे ये जो डिवाइसेस हैं ये वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड हैं. तो इस केस में देखें हमारे पास शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स हैं. मीन मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जो है वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है. सो जिसको हम यहाँ पे शेयर्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क कनेक्ट एंड सिस्टम टू द राउटर वाया बेस स्टेशन एंड आल्सो नोन एज एक्सेस पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं और हम बेस स्टेशन भी कह सकते हैं हमारे पास. सो ये जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स है जिस जो घर के अंदर आपके पास जो है नेटवर्क्स है, तो यूजुअली ये हमारे पास विद इन अ वन बिल्डिंग ऑपरेट होता है. अप्रॉक्सीमेटली रेंज जो है वो 100 फीट और लेस देन 100 फीट है, ठीक है. इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. ये हम चैप्टर 5 में इन स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे. IEEE 802.11b G एंड N जो है इस डिफरेंट स्टैंडर्ड जिसको हम वाईफाई स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं. हमारे पास जो 802.11b है
ये हमें 11 मेगाबिट्स पर सेकंड तक डाटा रेट सपोर्ट करता है, जो जी है 54 तक, और एन जो है वो 450 मेगाबिट्स पर सेकंड डाटा रेट को सपोर्ट कर रहा है। और ये होम नेटवर्क जो है उसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को वायरलेस एक्सेस नेटवर्क के साथ हमने कनेक्ट किया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सेस नेटवर्क्स है, दैट इज वाइड एरिया सेलुलर एक्सेस नेटवर्क्स, that is provided by the mobile और cellular networks like operators हैं जो हमारे पास मोबाइल लिंक है, वारित है, यूफोन है, these are cellular network operators। so यहाँ पे जो एक significant चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो एग्जैक्टली वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क था उसमें जो रेंज थी वो 100 फीट तक थी, लेकिन जो हमारे पास वाइड एरिया सेलुलर एक्सेस नेटवर्क्स है उसके अंदर जो रेंज है वो हमारे पास 10 किलोमीटर तक है। ठीक है जी। डाटा रेट इसका लो है एज कम्पेयर टू जब हम वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स की बात कर रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बेस स्टेशन है और डिफरेंट आप मूव करते हुए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस बेस स्टेशन के साथ हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनको हम राउटर कहते हैं, और ये फिर डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास इंटरनेट के साथ एक कनेक्शन जो है हमारा वो इस्टेब्लिश कर रही होती हैं, हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो अभी हमारे पास करंटली 4G सेलुलर नेटवर्क्स हैं एंड 5G इज कमिंग सून, राइट। सो वाइड एरिया सेलुलर एक्सेस नेटवर्क्स भी है। हमने बेसिकली जो है वो केबल एक्सेस नेटवर्क्स की बात की, हमने हाइब्रिड कोएक्सियल केबल एक्सेस नेटवर्क्स की बात की, हमने DSL को डिस्कस किया, हमने वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स को डिस्कस किया जो कि हमारे पास लोकल एरिया सेलुलर एक्सेस लोकल एरिया नेटवर्क्स है, और फिर हमने वाइड एरिया सेलुलर एक्सेस नेटवर्क्स की बात की है। नेक्स्ट वी हैव इंटरप्राइज एक्सेस नेटवर्क्स। इंटरप्राइज कहते हैं जो बड़ी कंपनीज में हमारे पास जो है जो नेटवर्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ है लाइक, या आपके पास ऑफिसेज हैं जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स होते हैं जिनको हमें इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। सो कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, ऑल दीज आर द इंटरप्राइज नेटवर्क्स। यहाँ पे उसको बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे स्विच है डिफरेंट वायर नेटवर्क्स के साथ, ये डिफरेंट नोड इसके साथ कनेक्टेड हैं, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क्स भी है यहाँ पे हमारे पास। और फिर ये जो इथरनेट स्विचेस हैं वो इंस्टीट्यूशन भी हमें कुछ सर्वर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारे पास एक ISP है जहाँ पे डिफरेंट किस्म के सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, राउटर पड़े हुए हैं वहाँ, ठीक है जी। और वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशनल मेल्स होती हैं, वेब सर्विसेज होती हैं, वो इन सर्वर्स पे जिनको हम लोकल या इंस्टीट्यूशनल सर्वर्स भी कह सकते हैं यहाँ पे हैं, ठीक है जी। और फिर ये इंटरप्राइज नेटवर्क्स है जो ISP के साथ कनेक्टेड है। यूजुअली हमारे पास यहाँ पे 200-500 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स के हमने कनेक्शंस लिए होते हैं ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स को इंटरनेट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकें। सो जो इंटरप्राइज नेटवर्क है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ वाइड wireless link technology connecting a mix of switches, routers, right? So we will cover difference shortly कि हमारे पास स्विच का फंक्शंस क्या है और राउटर का फंक्शंस क्या है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास इथरनेट वाइड एक्सेस नेटवर्क्स हैं जो कि मीन ये जो नोड है ये इस स्विच के साथ जो कनेक्टेड है वो इथरनेट वाइड एक्सेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, जिसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 गीगाबिट पर सेकेंड और 10 गीगाबिट पर सेकेंड तक पॉसिबल है। इट डिपेंड्स कि आपके सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा है और आप किस स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कैपेसिटी है, वो कितने हायर डाटा रेट को मैनेज कर सकता है। देन हमारे पास वाईफाई है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। यहाँ पे जैसे ये सारे जो नोड्स हैं वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं। जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं उसमें हमने अभी प्रीवियसली बात किया है कि हमारे पास 11, 54 और 450 मेगाबिट्स पर सेकंड तक डाटा रेट जो है वो सपोर्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम समराइज करें इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर 2, तो हमने बेसिकली प्रोटोकॉल को डिफाइन किया है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड किया है, और हमने एक्सेस नेटवर्क और उनकी डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास एक्सेस नेटवर्क्स क्या हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। So thank you very much, and then let's move towards the part 2 of
this lecture